Hello students, today I am going to introduce hydrogen bonding. Now, what do you mean by hydrogen bonding? Hydrogen bonding means when the hydrogen atom that is bonded to a highly electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine. Means the hydrogen bond is formed between one atom of hydrogen and another atom is electronegative atom like nitrogen, oxygen and fluorine. This type of bonding electron pair that is drawn towards the electronegative atom. Suppose this is the example of HF. Here hydrogen is more electropositive and fluorine is more electronegative. So fluorine have a tendency to pull the electron towards itself. So in between hydrogen and fluorine, which type of interaction is formed? Hydrogen bonding is formed. Okay. Now, what is the definition of hydrogen bonding? This is an electrostatic attraction between the hydrogen atom which is bonded to the small strongly electronegative atoms like nitrogen, oxygen and fluorine, and the lone pair of electrons on these electronegative atoms. Means you can see that the attractive force which binds the hydrogen atom of one molecule with the highly electronegative atoms like oxygen, nitrogen and fluorine of same or another molecule. This type of bonding is called as hydrogen bonding. Hydrogen bonded is represented by a dotted line. Okay, like this. Suppose this is hydrogen. This is fluorine. Here this is plus delta, here this is minus delta. And the next molecule is again HF. This is plus delta, this is minus delta. And here the bond formed between the hydrogen and the most electronegative fluorine atom. This is shown by the dotted line. Okay. So this is called as hydrogen bonding. Okay. Means in the case of HF molecules, the hydrogen bonds that exist between the hydrogen atom of one molecule and the fluorine atom of another molecule. Hydrogen bonds behaves like a bridge between the two atoms that holds the one atom by the covalent bond and another atom by the hydrogen bond. Means this is hydrogen bond and this is covalent bond. Covalent bonds is formed between the mutual sharing of electrons. ठीक है, equal sharing of electrons या equal contribution of electrons formed between the two atoms. This is called as covalent bond. Now next is examples of hydrogen bonds like HF. H देखो बेटा, H एंड F इसमें यहाँ पे ऐसे जोड़ रखा है. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है दैट इज़ प्लस डेल्टा, दिस इज़ माइनस डेल्टा. उसके बाद फिर यहाँ पे FH ऐसे जुड़ जाएगा. फिर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा. तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन. मीन्स ये क्या है कि सेम मॉलिक्यूल है HF दैट कंबाइन हो रहे हैं किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू. तो इसमें हम कह सकते हैं कि the cause of formation of hydrogen bond is due to the
hydrogen is bonded to the highly electronegative elements, then the shared pair of electrons move towards away from the hydrogen atom. ठीक है, so hydrogen becomes highly electropositive and other atoms that is highly electronegative. Okay, so there is a displacement of electrons towards the electronegative atoms. So hydrogen acquires some partial plus charge and electronegative acquire the negative charge, and the formation of polar molecules with this electrostatic force of attraction, this is called as hydrogen bonds. Okay, now same in this case, this is the water molecules. Here the bond formed between the hydrogen and oxygen, दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब बेटा ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ठीक है, मीन्स वन एटम तो हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, सेकंड एटम कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले सकते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके. अब जैसे इसमें फ्लोरीन भी ले लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, नाइट्रोजन भी ले लेते हैं. ठीक है, ये ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं. तो जो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है. ठीक है, और तभी ये क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स जब इसकी तरफ जाते हैं तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, जो क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज़ NH3. अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है. ठीक है, अगर इसमें नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड. इस वाले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. नेक्स्ट अदर एटम भी ले सकते हो आप, CH3OH है, CH3OH है यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया है. इस केस में क्या होता है हमारे पास कि जो ये हाइड्रोजन है और अगले का ऑक्सीजन एटम, दोनों क्या है, आपस में मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, इधर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना ज़रूरी है. तो क्या है, दैट विल मेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट, now what are the condition for the hydrogen bonding? What are the conditions? देखो बेटा, a hydrogen bond is formed when some conditions are satisfied. First condition is high electronegativity of atoms combining with hydrogen. ठीक है, मीन्स जो हमारा एटम है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दैट विल बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, मीन्स द मोलिक्यूल दैट मस्ट हैव एन एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ HF, H2O एंड NH3. ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. स्मॉल साइज होना चाहिए. स्मॉल साइज किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना चाहिए. The size of electronegative atom should be small because a smaller atom attract the bonded electrons pair strongly. Okay, so these are the two conditions for making the hydrogen bond. Now next, the hydrogen bond means जो magnitude of hydrogen bonds that depends on the physical state of the compound. किस पे डिपेंड करता है, physical state of the compound. फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है. इट मीन्स अगर हम सॉलिड का केस लेते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, गैसेस में मिनिमम होती है. तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दैट डिपेंड ओनली ऑन द स्ट्रक्चर एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड. स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी उन पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये है. नाउ नेक्स्ट, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब टाइप्स कितनी है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, क्या टाइप्स हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
sorry, intermolecular hydrogen bond, and second is intramolecular hydrogen bond. देखो बेटा, इंटर मीन्स होता है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। और इंट्रा होता है सेम जो मॉलिक्यूल होना चाहिए बट एटम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन, मतलब अपने स्कूल के ही बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अपने स्कूल के डिफरेंट क्लासेस के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। बट एक होता है इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर का मतलब है कि बाहर के स्कूल भी उसमें पार्टिसिपेट करें और हमारा स्कूल भी उसमें पार्टिसिपेट, हमारे स्कूल के साथ किसी बाहर के स्कूल का कंपटीशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटर स्कूल कंपटीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अब देखो, intermolecular hydrogen bond means the hydrogen bond that is formed between the two molecules. Intra means the hydrogen bond that is formed between the two different atoms in the same molecules, ठीक है। सेम molecules लेंगे लेकिन एटम डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इंटर में क्या होता है, देखो सबसे पहले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में हम एग्जांपल लेते हैं कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। लाइक अभी आपने एग्जांपल दिया था HF का, HF मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल्स है, कंबाइन हो रहा है, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। वाटर है, अल्कोहल है, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड in the association of two molecules and in increase the melting point, boiling point and solubility, ठीक है। ये तब बनता है। आपने सुना होगा कि आपने एक एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल लेती हूँ, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो देखो बेटा, ये मॉलिक्यूल्स आपका होता है, अब ये होता है फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये आपका अगर आ जाए तो NO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते हैं और यहाँ पे आपका ये वाला बन जाता है। अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, ये बनाया, यहाँ लिखा मैंने N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका रहा ऑक्सीजन और इस पे आ गया बेटा OH। अब बेटा इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज़ प्लस डेल्टा, दिस इज़ माइनस डेल्टा, और इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी दैट विल बी फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। अब ये क्या है हमारे पास, intermolecular hydrogen bond is formed in the paranitrophenol. Okay, means this bond is formed between the two molecules. Okay, now next, intramolecular hydrogen bond. In this case, intramolecular hydrogen bond, the hydrogen bond is formed between the two different atoms. इसमें क्या होगा बेटा कि द बॉन्ड एग्जिस्ट व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इसमें आपको लर्न करना इंट्रा मीन्स सेम, ठीक है। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैसे लेंगे, देखो ये वाला एग्जांपल है। इसमें आपने देखा ही बेंजीन है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH है। तो इस केस में हमारे पास क्या है बेटा, ये माइनस डेल्टा और दिस इज़ प्लस डेल्टा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द
दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या बना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो ये क्या विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो होती है दैट प्रिवेंट द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड मेकिंग द मॉलिक्यूल मोर शेड्यूल्ड। ठीक है, इट डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ओके, तो तभी तो कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दैट मेक द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। ओके, now the next is importance of hydrogen bonding in physical phenomena। इसमें आता है बेटा फर्स्ट पॉइंट, एनोमेनस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड पीरियड हाइड्राइड्स। देखो, वाई डू H2O, अमोनिया एंड HF दैट हैव एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन वाई द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज H2O, HF एंड NH3। ठीक है, ये ऑर्डर बताना है। तो देखो, आप देख रहे हो ये आपने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिया है, वाटर जो है 100 पे बॉयल हो रहा है और HF जो है ये लगभग 0 से नीचे आ रहा है, और उसके बाद फिर अमोनिया है। तो देखो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इन अदर्स के कंपैरिजन में इन तीनों का ही ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो रीज़न देखो बेटा, फर्स्ट, वाई डू अमोनिया, वाटर एंड HF हैव एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज देखो सभी के अंदर क्या है, बिकॉज द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दैट आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, एंड ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन देयर हाइड्राइड्स, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मच स्ट्रोंगर देन द वैन डर वाल्स फोर्सेस, सो मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द hydrogen bonds in the case of ammonia, water and HF. So it has very high boiling point. Okay, now next question, explain why the order of boiling point that is H2O, HF and NH3 explain करना है। देखो बेटा, in case of NH3 number of hydrogen atoms available for hydrogen bond formation that is 3। ठीक है, लॉन पेयर कितने हैं बेटा, अमोनिया पे कितने लॉन पेयर होते हैं, 1 लॉन पेयर होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड पर मॉलिक्यूल दैट इज़ 1। इन केस ऑफ वाटर number of hydrogen atom that is 2 and number of lone pair that is also 2 and number of hydrogen bonds can form पर मॉलिक्यूल दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2। दो ही बॉन्ड बनेगा। HF में क्या है, कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है। लॉन पेयर कितने HF में 3 है। ठीक है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड पर मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल और NH3 एंड HF ओनली फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज़ हायर देन दैट ऑफ अमोनिया एंड HF। ठीक है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ओके, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं पर मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा आपने वाटर को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। HF और NH3 देखो, जब हम नाइट्रोजन और फ्लोरीन को कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इस केस में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन द HF मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू NH3। तो जो HF मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू NH3। इस वजह से HF का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो अपना कंपेरिजन ऐसे आ जाता है, पहले वाटर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर HF और HF में NH3, क्योंकि इसमें क्या होता है,
2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं पर मॉलिक्यूल के साथ। इसमें 1 बनता है, इसमें 1 बनता है, लेकिन फिर इन दोनों को कंपैरिजन किया गया तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, so it will form strong bond. Okay, now the next importance of hydrogen bonding in physical phenomena. Enthalpy of vaporization. What do you mean by enthalpy of vaporization? The energy required to vaporize 1 mole of liquid into the vapor form. Okay, now the question arises from here. Explain why water has the largest enthalpy of vaporization than the H2S, H2SC and H2TE. Means जो आपके पास सल्फ़र है, सेलेनियम है और टेल्यूरियम है, इनसे वाटर की जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है वो लार्ज होती है. वाई? नाउ रीज़न इज़, देखो बेटा इस केस में क्या होगा हमारे पास कि जो वाटर है वाटर के अंदर हमें पता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड होता है, ठीक है, जबकि H2S, H2SC, H2TE इनमें जो होता है हमारे पास वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ठीक है. अब आपको पता है कि जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की दैट विल बी स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. सो टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड हैज़ लार्जेस्ट एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन. ओके, दिस इज द आंसर. तो मेन रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और which hydrogen bonds? Intermolecular hydrogen bonds, the bond which are formed between the two different atoms, ठीक है, जो जो दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है उसको हम डिफरेंट एटम्स कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, this bond is very strong as compared to intramolecular hydrogen bond. Now the next importance of hydrogen bonds in physical phenomena. Boiling point and solubility of alcohols. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स. एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट बेटा हमेशा ग्रेटर होता है एज़ कंपेयर टू थायोल्स. थायोल्स क्या होते हैं? जो सल्फ़र एटम से बने होते हैं. एल्कोहल भी होती है और उसमें सल्फ़र भी प्रेजेंट होता है. तो बेटा जो एल्कोहल होती है आपने देखा है एल्कोहल में OH बॉन्ड बनता है, पता है. और जैसे मेथनॉल बनाते हो आप तो इसमें एक ऑक्सीजन ले लेते हो इधर से, इधर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो एल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है. जबकि थायोल्स में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता. उनमें क्या होता है? ओनली डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो वो हमेशा ग्रेटर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है दैट इज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दिस इज़ द रीजन फॉर हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल as compared to thiols. Okay, now second reason you can say that the alcohols of low molecular masses are soluble in water because they form intermolecular hydrogen bond with the water molecules. जिनका लो मोलिकुलर मास है वो आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं. और वाटर में सॉल्युबल कब होंगे बेटा? जब उनके साथ क्या बनेगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो तभी वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा. ओके, तो कहते हैं ना सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड्स के ऊपर. तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्ग सो सॉल्युबिलिटी इज़ हायर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो बेटा डाइमराइजेशन मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को दो बार जब हम लिखते हैं तो देखो हमने ऐसा लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारा यहाँ पे CH3COOH, तो मैंने इसको लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड O और OH. फिर मैंने इसको उल्टा लिख दिया दूसरी वाली साइड,
तो ये तो देखो बेटा, इस फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो देखो, इट हैपन्स व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और इन वेपर स्टेट। ये जब होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में या वेपर स्टेट में डिज़ोल्व होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं इथेनॉइक एसिड का, हमने एग्जांपल लिया है। और इथेनॉइक एसिड क्या करता है, डाइमर बनाता है, ठीक है। ऐसे बना दिया एक बार, तो इसने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर अपना लिखा, एक बार इसको अपोजिट कर दिया। और इट विल फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये क्या बना रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। Now next question beta, next question is hydrogen bond is formed in the ice and water। अब वाटर और आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, देखो बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है एग्जिस्ट बिटवीन द बोथ वाटर एंड आइस। वाटर और आइस के बीच में हमेशा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। वाटर में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं। कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या है, एक ही पोजीशन पे वहीं पे अपना मूव करते रहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड हो जाता है और ब्रोकन कंटिन्यूसली, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और टूटता रहेगा, ऐसे ही बनता रहता है। तो जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो रैंडम मोशन में होती है। देखो जैसे ये बना हुआ है आपका, ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, क्योंकि वाटर में तो H2O बनता है ना। तो बीच में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है, दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसमें लिया, ये ऑक्सीजन है और ये छोटे छोटे जो दिखा रखे हैं ना, ये हाइड्रोजन है। तो ये हर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे जो है जुड़ा हुआ है अपने पास में, ठीक है। तो जो ये डॉटेड लाइन दिखा रखी है दैट इज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। बट आइस का अगर हम केस देखें बेटा, तो आइस के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब वो मूव नहीं कर पाता मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो आइस होती है ना वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ओपन होता है। और देखो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है। जब ये बहुत ज़्यादा ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगी तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन यही है कि जो आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, हर वाटर मॉलिक्यूल, ये आइस का स्ट्रक्चर है और देखो यहाँ स्पेस कितना है, ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बना रही है कंप्लीट, ठीक है। ईच वाटर मॉलिक्यूल दैट इज टेट्राहाइड्रली बॉन्डेड टू द 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हर वाटर मॉलिक्यूल जो है 4 हाइड्रोजन के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स द ओपन स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं एंड दैट गिव राइज टू लोअर द डेंसिटी ऑफ द आइस एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो इसलिए मैंने बताया था अगर ये ओपन स्ट्रक्चर में आते हैं तो डेंसिटी डिपेंड करती है मास बाय वॉल्यूम पे। तो ओपन स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बट डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड हम इसमें कह सकते हैं कि जो इंसुलेट द वाटर बिलो एंड प्रिवेंट कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन, दैट्स वाई कीप द फिश सर्वाइव इन पोलर रीजन, ठीक है। ये वाटर को क्या कर देती है, इंसुलेट कर देती है और उसके सॉलिडिफिकेशन से प्रिवेंट करती है, बचाती है। इसलिए पोलर रीजन में जो होती है फिशेस आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, दिस ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर।
दिस इज ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर। बेटा अब इसमें देखते हैं हम वाटर और आइस में से अगर हम देखें तो विच वन फॉर्म स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइस सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है, इसलिए आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ओके, now students, these are the questions related to the intermolecular or intramolecular hydrogen bond, and these are the examples that are related to hydrogen bonding. Please do practice. Thank you.